شازیہ اینڈ ذیشان ہمارے ساتھ ہیں جی. ہاں جی. اچھا ذیشان, آج کا ذرا میچ کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ آج کے میچ جو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے پورا ایک ذرا ہمیں ریویو دیں پورے ویک کا کہ جو بھی میچز ہوئے تو کون کہاں پہ کھڑا, کون جیتا, کیا ہوا, وہ پھر اس سے بات کریں. لیکن آج پہلے میچ کے جو آج کا ہے, میری جو ٹیم تھی پشاور میں آج جیت گئی. پہلا گیم جی تیسرا میچ انہوں نے کھیلا, 2 گیم وہ ہار چکے تھے. ایک پہلا میچ جو ہارے وہ کوئٹہ گلیڈرز سے, اور دوسرا میچ کراچی کنگز سے ہارے. آج تیسرا میچ تھا ملتان سلطان کے درمیان. ملتان میں یہ لوگ میچ کھیل رہے تھے اور پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 179 رن بنایا, 179. اس میں جو سب سے نمایاں رہے وہ حسیب اللہ خان تھے. 37 رن کی انہوں نے اننگ کھیلی, 18 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور 4 چوکے ان کی اننگ میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ اگر میں بولنگ کی بات کروں ملتان سلطان میں, تو سب سے زیادہ نمایاں رہے 4 اوور دے کر 23 رن. جو سب سے زیادہ اکنامیکلی رہے وہ محمد شاہ نواز دھانی رہے. 4 اوور میں 23 رن دیے, 2 کھلاڑی کو انہوں نے آؤٹ کیا. محمد علی کی ہم بات کریں تو انہوں نے 4 اوور میں 23 رن دیے اور 2 کھلاڑی کو انہوں نے آؤٹ کیا. اور ڈیوڈ ویلی ہیں انگلینڈ کے بالر, انہوں نے 4 اوور میں 28 رن دیے اور 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اچھا ماہد بھائی, ہم لوگ نماز میں موجود تھے تو یہ میچ اتنا دلچسپ ہو گیا تھا کہ 12 بالوں پہ 14 رن چاہیے تھے, لیکن پھر پشاور کی ایک اچھی بولنگ کی وجہ سے 2 بالوں پہ 6 رن چاہیے تھے, اور پھر افتخار احمد جو ہے آؤٹ ہو گئے اور 1 بال پہ 6 رن چاہیے تھے. شاہ نواز دھانی نے آخری گیند فیس کی اور وہ پھر بولڈ ہو گئے. تو اس طرح یہ میچ جو ہے پشاور زلمی نے 5 رن سے جیت لیا. ملتان سلطان کی طرف سے اگر ہم بات کریں تو سب سے نمایاں رہے ان کے ڈیوڈ ملان, انگلینڈ کے جو ماہر ناز بیٹسمین ہے, T20 اسپیشل ہے. پشاور زلمی سے کھیلتے تھے, پہلے 52 رن بنائے انہوں نے, 25 گیندوں کا سامنا کیا, 3 چوکے اور 3 چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے. اگر ہم بات کریں پشاور زلمی کی بولنگ کی تو عارف یعقوب نے 4 اوور میں 43 رن دیے, 3 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. اور لوک ووڈ جو انگلینڈ کے فاسٹ بالر ہیں, انہوں نے 4 اوور میں 13 رن دیے اور 2 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. نویل الحق جو افغانستان کے بولر ہیں, انہوں نے 4 اوور میں 44 رن دیے اور انہوں نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اچھا یہ جو سیریز ہے ماجد بھائی اور شاہدی, آپ سن رہے ہیں آپ تصورہ, یہ شروع ہوا تھا لاسٹ سیٹرڈے. لاسٹ سیٹرڈے کو پہلا میچ تھا لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان. یہ میچ جیت لیا اسلام آباد یونائٹڈ نے 8 وکٹ سے. پھر دوسرا میچ ہوا تھا کوئٹہ گلیڈرز اور پشاور زلمی کا. یہ میچ جو ہے کوئٹہ گلیڈرز نے 16 رن سے جیتا تھا. اور اس کے بعد جو تیسرا میچ ہوا تھا ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان, کوئٹہ گلیڈرز نے یہ 5 وکٹوں سے جیت لیا تھا. اس کے بعد جو 5واں میچ ہوا تھا اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی ملتان سلطان کے درمیان, ملتان سلطان نے یہ میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا تھا. پھر ایک اور بدھ کو جو چھٹا میچ ہوا تھا پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان, یہ کراچی کنگز نے 7 وکٹوں سے جیت لیا تھا. اور لاہور قلندر اور ملتان سلطان کے درمیان 7واں میچ ہوا تھا, ملتان سلطان نے یہ میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا تھا. کل جو میچ ہوا تھا اسلام آباد یونائٹڈ اور کوئٹہ گلیڈرز کا, وہ کوئٹہ گلیڈرز نے 3 وکٹوں سے جیت لیا تھا. اور آج پشاور زلمی نے یہ میچ 5 رن سے جیت لیا. اچھا کل پوائنٹس ٹیبل کیا بن رہے ہیں اب کل کے کیا میچز ہیں اور پوائنٹس ٹیبل کیا ہے؟ جی کل کے میچز میں بتا چلوں, کل جو ایک میچ کھیلا جائے گا لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان, لاہور اور کراچی کا تاکڑا ہوگا. اور یہ میچ جو ہے ٹورانٹو کے ٹائم صبح 9 بجے شروع ہوگا. تو یہ ڈے 9 میچ ہے, ہمارے پاکستان میں شام کے 7 بجے ہوں گے اور ٹورانٹو میں 9 بج رہے ہوں گے. سنڈے کو 2 میچز ہیں ملتان سلطان کے درمیان. پہلا ڈے میچ ہے ملتان سلطان اور کوئٹہ گلیڈرز ہے. یہ میچ جو ہے ٹورانٹو کے 4 بجے شروع ہوگا صبح کے. کیا لگتا ہے یہ میچ جیتے گا کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹو کیپ دیئر پرفیکٹ سکور؟ بالکل کیوں نہیں, کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے بالکل فارم میں ہے اس دفعہ, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ وہ ہارڈ ٹائم دیں گے ملتان سلطان کو. ان کا کمبینیشن بہت اچھا ہے. 2 ٹائم چیمپئن جو اسلام آباد یونائٹڈ تھا اس کو ہرایا انہوں نے. جی. اور پھر سنڈے کو دوسرا میچ ہوگا ڈے 9 میچ, ٹورانٹو کے صبح 9 بجے کھیلا جائے گا لاہور قلندر اور پشاور زلمی کے درمیان. اب اس میں کون جیتے گا؟ ہماری ٹیم تو زلمی ہے. جی زلمی جیتے گی بالکل, زلمی جیتے گی. لیکن اب پوائنٹس ٹیبل کو کریں تو جو ڈیفائن چیمپئن ہیں لاہور قلندر, ان کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. انہوں نے 3 میچز کھیلے ہیں اور تینوں میچز دیکھیں ہارے ہیں, اور سب سے باٹم پہ جو ہے لاہور قلندر نظر آ رہی ہے. تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے لاہور قلندر کے لیے. ملتان سلطان پہلے نمبر پہ, انہوں نے 4 میچز کھیلے ہیں, 3 جیتے ہیں, 1 ہارے ہیں آج پشاور زلمی سے. کوئٹہ گلیڈرز نے 3 میچز کھیلے ہیں, تینوں جیتے ہیں اور ان کے پوائنٹ 6 ہیں, اور ملتان کے بھی 6 پوائنٹس ہیں. تیسرے نمبر
नंबर पर आ जाती है टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं 2 हारे हैं और उनके पॉइंट्स हैं 2। कराची किंग्स 2 मैच खेली हैं, 1 जीते हैं 1 हारे हैं, उनके पॉइंट्स की तादाद है 2। पेशावर ज़ालमी 3 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं 2 हारे हैं और उनके पॉइंट्स की तादाद है 2। लाहौर कलंदर्स ने 3 मैचेस खेले हैं, तीनों ही हारे हैं और उनके पॉइंट्स की तादाद। इस चार्ट में मेरा ख्याल है समथिंग रॉन्ग, क्योंकि कराची किंग्स को उन्होंने चौथे नंबर पे दिया है, हालांकि उनको देखें 2 मैचेस खेले, 1 हारा 1 जीता, और इस्लामाबाद जो है वो तीसरे नंबर पे है, 3 गेम जीतने के खेलने के बाद 1 and 2 loss. So Islamabad United should be 4th and Karachi Kings should be 3rd. अच्छा, लेकिन वो रन रेट से उन लोग देखें, अगर आप रन रेट है ना 0.028 जी, प्लस और माइनस का रन रेट का भी हिसाब किताब है, तो मैं समझ गया आपके पॉइंट समझ में। Yes, रन रेट के हिसाब से अच्छा जो है वो टीमें run rate तो you can calculate when there is both teams played the same amount of matches. जी जी, हाँ, इसमें तो सेम अमाउंट ऑफ मैचेस नहीं खेले। इसमें जो रन रेट काउंट कर रहा है कि वो कितनी टीम ने अभी तक खेल चुके हैं। कराची नंबर 3 है जी। वही है ना कि कितने, यानी कितने मार्जिन से वेरी रेयरली यू से कराची इज नंबर 3, तो इसको देख के खुश हो जाओ ना। आप चाहते हैं कि नीचे हो? ना ऊपर। ये इधर भी रिगिंग चल रही है। देखो स्पोर्ट्स में भी रिगिंग चल रही है। अच्छा, ह्यूमर जो है ना हमारे मुल्क में या हमारी ज़बान में ह्यूमर का कोई वो नहीं। तो मुल्तान सुल्तान ने जो है ना एक ट्वीट किया उर्दू में, अच्छा, जब आप खबर लेने आए और आप खुद खबर बन जाएं। ठीक है ना। फिर लाहौर कलंदर वाले ने जो है अपना ट्विटर में डाला, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामात आए फका और भी हैं, कलंदर का काफिला सुल्तानों की खबर लेने मुल्तान रवाना। जो ह्यूमर हमारे लोगों में है ना वो नहीं है, ये गोरो शोरों में इतना ह्यूमर नहीं है जी। तो आज मैंने पढ़ा तो आज मुझे बड़ी अच्छा, मैंने कहा कि इसको जो ये ट्वीट भी दिखाते हैं तो ये अच्छा मजा आता है लोगों को। जी बिल्कुल, हम लोग दिखाएंगे और इंशाल्लाह अगले फ्राइडे में जो है और कुछ क्लिप्स और मजेदार जो मीम्स होती हैं, मीम्स के वो जो आते हैं ना, जो स्पेशली एक्स पे जो इन्होंने किए होते हैं बहुत सारे, तो वो दिखाएंगे तो बहुत लोगों को मजा आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज तो मैं जो देख रही थी जो मीम्स बन रहे थे, तो उसके अंदर जो वो PSL के जो थे, उसमें तो ज्यादातर लोग जो मतलब मीम्स क्या थी, वो तो जो स्टेडियम के हाल दिखा रहे हैं कि लोग खाली हैं, वहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं ज्यादा। उसकी क्या वजह मुझे समझ में नहीं आई। वही बाइकआउट जो हमने अब बात कर रहे थे इसमें शुरू में, और लेकिन इतनी ज्यादा मतलब है, चलो ठीक है, कोई 1000 1200 10,000 12,000 कोई लोग जो हैं वो तो शायद करेंगे, बट देयर इज अ मैसिव यूथ मूवमेंट इन द कंट्री। तो वो जो सारे यंगस्टर्स हैं वो तो बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं देखने के लिए। और शायद एक और फैक्टर मुझे भी लगता है कि इन्होंने जो टिकटिंग है वो बिल्कुल डिजिटल कर दी, यानी कि पहले जो मोबाइल फोन्स के डीलर्स के पास आप जाके लिया करते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। ठीक है ना। और एक फैक्टर ये भी है कि लोग स्मार्टफोन रखना नहीं चाहते, चाहे चोरी का भी डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और नहीं चोरी का डर नहीं है, वो ट्रैक हो जाते हैं स्मार्टफोन। जी और इतनी बड़ी तादाद नौजवान के अच्छे उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, तो कि शायद हो सकता है कि ये भी फैक्टर हो। हमारे बहुत सारे लोग जो है वो टेक्नोलॉजी लैगर्स भी तो है ना, उनको तो वो बस हाथ में ना वो पेपर वाला वो टिकट चाहिए है ज्यादातर लोगों को। बिल्कुल, नो डाउट। तो वो मुझे लगता है वो भी है। अच्छा, मुल्तान में एक मैं आई विश के मैं वो क्लिप लाता, तो मुल्तान में मैच हो रहा था। अच्छा, आवाजें लगी माजिद भाई, केडी नंबर 804 इमरान नंबर के नंबर 804। वो मैं क्लिप जो है नेक्स्ट फ्राइडे लेके आऊंगा, हम वो दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जीशान, मैं देख रही थी कि इतने टैलेंटेड लड़के अब हमें नजर आते हैं PSL के अंदर। मुझे नहीं समझ आती कि जिस वक्त ये इंटरनेशनल मैचेस में जाते हैं तो उनको क्या हो जाता है। देखो, ये ड्रीम रह गया पाकिस्तान का। 1992 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद PCB की कोई स्ट्रेटजी नहीं ठीक रही, कोई इनके पास सही जो है कैप्टन नहीं आया, कोई ये सही तरह से लड़कों को ग्रूम नहीं कर पाए। चक्कर क्या है कि 1992 का बस वो जो ख्वाब था वो ख्वाब ही रह गया, उसके बाद हम जीतते नहीं। आपके PCB का चेयर कौन है? जिसमें बल्ले का पुट्ठा पासा नहीं पता। अच्छा, एक फैक्टर ये क्या है
जो सीरीज हुआ करती थी पहले, मैं शायद आपको भी याद Yes. होगा, सीरीज से पहले जो है ना कुछ प्रैक्टिस मैचेस हुआ करते थे, दोस्ताना मैच इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, 3 रोजा 4 रोजा, अब वो खत्म होते जा रहे हैं। तो जो टीम आती है बस वो प्रैक्टिस सेशन करती है और आपको डायरेक्ट मैच खेलना। तो अगर जब तक आप प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे, उन लड़कों के साथ नहीं खेलेंगे जिनसे आपका सामना है इंटरनेशनल में, तो एक वो फैक्टर जो है मुझे बहुत अच्छा, इंडिया के अंदर उन्होंने अब ये लाजम कर दिया, अगर आपने देखा होगा कि ये जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा एंड ऑल दैट, बस ये भी यही करते थे कि जी बाहर गए खेलने के लिए, उसके बाद जब बड़ा मैच आ गया, अब इंडिया में पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा चाहे जितना बड़ा कोई प्लेयर है, रणजी ट्रॉफी उसको खेलनी पड़ेगी, बिल्कुल रणजी खेलनी पड़ेगी उसको। और वही बात आप भी कर रहे हैं कि जिस वक्त तक ये कंपेटिटिव मैचेस डोमेस्टिकली नहीं खेलेंगे, एकदम से उधर जाके पहुंच जाएंगे तो फिर इनसे नहीं होएगा। देखिए जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट का जवाल आया 2016 के बाद, वो यही था कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो चाह रहे थे कि बस हम दुनिया भर में जितने भी T20 और उन टॉप आईपीएल में बहुत खेले वेस्ट इंडीज के, अब वो अपनी टीम के लिए दस्तयाब नहीं है, डोमेस्टिक के लिए दस्तयाब नहीं है, लेकिन आप जो है इंटरनेशनल लीग्स आप खेल रहे हैं, तो आपकी टीम को किस तरह चलेगी, राइट? आपके जो नए आने वाले खिलाड़ी हैं वो आप किस तरह ग्रूम करेंगे उनके। लेकिन वेस्ट इंडीज में दूसरे भी इश्यूज थे ना, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, उनको प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे, क्लब बड़ा इल ऑर्गेनाइज्ड था। आई एम विद प्लेयर्स इन दिस केस, आप लोग नहीं है, मगर ये नहीं, मैं तो हूं। दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, दे आर प्रोफेशनल पीपल। उनका जो वो काम करने का दिन है वो बहुत छोटे होते हैं कि विद इन 8-10 साल के अंदर वो खत्म हो गया उनका गेम। तो वो उसके लिए उनको चाहिए कि जितना पैसा जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, तो उसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए और उनको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सकें या इसकी स्पॉन्सरशिप लेके दें उनको, ताकि वो अपना कोई फ्यूचर के लिए कुछ सेव करके। यही तो लड़ाई थी माजिद भाई उनकी वेस्ट इंडीज में। तो क्योंकि ये जो है ये इवेंचुअली उन्होंने अपना फ्यूचर देखना है कि कल की जगह में इंजर्ड हो गया तो फिर क्या होगा। जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा था एग्जैक्टली। आपने मेरे जो है लफ्ज छीन लिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के साथ जो बोर्ड प्लेयर्स का बोर्ड जो था पैसे ही नहीं उनको दे रहे थे, पैसे ही नहीं दे रहे थे। कहते हैं कि भाई आप हमें फॉर एग्जांपल $50,000 देते हैं साल के, $50,000 तो हम 2 मैचेस खेल के कमाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। फिर आई थिंक ऑल क्रेडिट्स गो टू फिल सिमंस, और फिर डैरेन समी ने जो है उन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ा काम किया। डैरेन समी ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, T20 लीग्स उन्होंने खेली है, तो आई थिंक उनकी वजह से जो है काफ़ी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस आए हैं और हमने देखी भी है। और अब जो वर्ल्ड कप जो है USA और वेस्ट इंडीज में होगा, हम देखेंगे वेस्ट इंडीज की टीम जो है इंशाल्लाह, और उनके जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनको हम एक्शन में भी देखेंगे और एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी वेस्ट इंडीज की तरफ। डैरेन समी को पाकिस्तान का वीजा कब दे रहे हो? नहीं, वो तो डैरेन समी खान है। अच्छा ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग को पाकिस्तान में लाने का डैरेन समी खान का बहुत बड़ा, तभी तो मैं कह रही हूँ उसको कब दे रहे हो पाकिस्तान की सिटीजनशिप। जी सही। ये था आज का प्रोग्राम हमारा। थैंक यू सो मच थैंक यू शाहिद जी। अगले जुमे को फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी। Thank एंड वेरी नाइस कवरेज, आपने पूरा डिटेल में बताया पूरे हफ्ते का, और अगले हफ्ते और तैयारी से आएंगे हम, एंड इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। अगले फ्राइडे को फिर 5:30 बजे ये क्रिकेट का स्पेशल शो हम आपके लिए पेश करेंगे। थोड़ी शरारत करता चलूं जी। नेक्स्ट फ्राइडे को टॉप पर कौन सी टीम होगी? ज़ेलमी कराची आपकी ज़ेलमी लेकिन होएगी वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स। चलिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू एंड हैव अ गुड वीकेंड एवरीबॉडी। और